حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی، آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا اتنا صدمہ تھا، بیٹے کی وفات پر بھی نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قلین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سیدھے اس قلین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قلین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے نصیب ہوا ہو نہ بعد میں حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اپنی اس حالت میں بھی وہ ایک روز وہ اس قلین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے، سیدھے اس قلین پر جا بیٹھے۔ ایک شخص نے آپ کو قلین سے کھینچ لیا، آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قلین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم اسے قلین سے اتار رہے ہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قلین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو نہ بعد میں ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قلین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مطلب کے لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا ہے، اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور پاؤں میں نہیں دیکھی، ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے، موضع کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے، ان میں ایک پادری تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتاب میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں پہنچا، پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، اب اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے، اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر کہتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے اور وہ اونٹ گم ہو گیا، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں، اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا، وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھی، بہت پریشان تھے ہم۔ اسی زمانے میں نے خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا، اس کی آنکھیں پلکیں گھنی ہوں،
भवें और आबरू मिले हुए वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले, तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ हो, खुशबू लगवाएं, हजर अस्वद को बोसा दें, फिर जब जबले अबू केस पर चढ़ जाएं, फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे। तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां इन्हें अब्दुल मतलब में मिल गई। चुनांचे सब उनके पास जमा हुए, हर खानदान से एक आदमी आया, सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त नौ उम्र थे। फिर अब्दुल मतलब आगे बढ़े, उन्होंने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं, तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तो देख रहा है, हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर, गधे सब खत्म हो चुके हैं, जानों पर बनाई है, इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे। हमें जिंदगी सरसब्जी और शदाबी अता फरमा। अब ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गई, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई। वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सराबी जरूर हासिल हुई, लेकिन ये बारिश कबीला कैस और बनु नज़र की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत परेशान हुए कि क्या बात है। एक कबीले पर बारिश हुई और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम, तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बात की चीत की। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है, ये अब्दुल मतलब की वजह से, इसलिए हाँ इन सब इनके पास चलते हैं, अगर वो हमारी दुआ करें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दें। सबको ये मशवरा पसंद आया। ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मतलब से मिले, इन्हें इस्लाम किया और इनसे कहा, ए अब्दुल मतलब हम कई साल से खुश साली के शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की। उनकी बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मतलब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मतलब के लिए कुर्सी बिछाई गई, उस पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया, फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह चमकने वाली बिजली के परवरदिगार, कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले, मुश्किलात को आसान करने वाले, ये सब कबीला के कबीला मजर के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे, आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, इनकी ज़मीनें से सब्ज़ हो जाएं, इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। अब्दुल मतलब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मतलब की तरफ आया। इसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मतलब ने कहा, ए कुरैश गिरोह और मज़र जाओ, तुम्हें सराबी हासिल होगी। चनाचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे, वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मतलब से किसी ने कहा, काज के बाजार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। अब्दुल मतलब आपको इसके पास ले गए। उसके इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने इसे आवाज़ दी, राहब ने जवाब ना दिया। अचानक इबादतगाह में ज़लज़ला आया। राहब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर ना गिरे, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, अब्दुल मतलब ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादतगाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल न कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मतलब सुनकर हैरान हुए, बोले, इनके पास? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लाभ दहन इनकी आंखों में लगा, उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गई। पुरानी आसमानी किताबों में आपकी बहुत सी निशानियां लिखी हुई थी, इसकी तफसीर बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमेर था, वो वहाँ एक शख्स सैफ बिन यजन रहता था। वो सैफ हमेरी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद करने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को खुशी हुई। इनकी एक खुशी की वजह ये थी कि इन्हीं अरबियों ने हबशियों ने अब्रह के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वक्त सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आए। कुरैश का भी एक वक्त मुबारक देने के लिए गए। इस वक्त के सरदार अब्दुल मतलब थे। ये वक्त जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी। हमेरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। इसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। इसने इन लोगों को आने की इजाज़त दी। ये वक्त दरबार में पहुंचा। अब्दुल मतलब आगे बढ़े, उसके सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तो हम बादशाहों के सामने बोलने के अदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मतलब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़, हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए बोझ बनी हुई थी, आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे
से आपके बुजुर्गों को इज्जत मिलेगी, आने वाली नस्लों को वक़ार हासिल होगा। सैफ ये अल्फ़ाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ और बेख्तियार बोल उठा, "ऐ शख़्स तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा?" उन्होंने कहा, "मेरा नाम अब्दुल मतलब बिन हाशिम है।" सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, "तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो।" अब्दुल मतलब की वालदा मदीने के कबीले खज़रज की थी और खज़रज का कबीला दरअसल यमन का था, इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, "तब तो तुम मेरी बहन के लड़के हो।" फिर उसने कहा, "हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज़्बात की कदर करते हैं।" इसके बाद क्रैश के वक़्त को सरकारी मेहमान खाने में ठहराया गया, उनकी खूब खातिरो मुदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुज़र गया। 1 माह की मेहमान नवाज़ी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया, अब्दुल मतलब को अपने पास बुलाया और कहा, "ऐ अब्दुल मतलब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज़ तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज़ को इस वक़्त तक राज़ ही रखना जब तक खुद अल्लाह ताला इस राज़ को ज़ाहिर ना फ़रमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राज़ों का एक खज़ाना है, हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अज़ीम-उश-शान ख़बर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है, वो आपके बारे में है।" अब्दुल मतलब ये सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए पुकार उठे, "मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं?" "सुनो अब्दुल मतलब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हो, जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा हो, यानी मोहर नबूवत, उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी। उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एज़ाज़ मिलेगा और इज़्ज़त मिलेगी।" अब्दुल मतलब ने ये सुनकर कहा, "ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर है। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा?" बादशाह ने जवाब में कहा, "यही इसका ज़माना है। वो इसी ज़माने में पैदा होगा या हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहे हैं कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम ज़ाहिर फ़रमाएगा। उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खज़रज में इस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खज़रज असल में यमन के लोग थे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और इनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा। उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएँगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को भगाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मतलब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, "कुछ और तफ़सील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मतलब, इसमें शुबा नहीं कि तुम उसके दादा हो।" अब्दुल मतलब सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर पड़े। फिर सैफ ने उनसे कहा, "अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊँची करो और मुझे बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है?" इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, "हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिन वहाब बिन मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उसके उसके और मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे के माँ-बाप दोनों फ़ौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं।" अब सैफ ने उनसे कहा, "मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो वाक़या इसी तरह है। तो अब तुम अपने पोते की हिफ़ाज़त करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं आने देगा। मैंने जो कुछ आपको बताया इसका अपने कबीले वालों से ज़िक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से इन लोगों में हसद और जलन पैदा हो जाएगी और सब लोग सोच सकते हैं, ये इज़्ज़त और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है? ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक़्त तक ज़िंदा न रहे तो इनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़ुहूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो अपने ऊँटों और काफ़िले के साथ रवाना होता, उनकी सल्तनत के मरकज़ यस्रब से पहुँचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यस्रब उनकी सल्तनत का मरकज़ होगा। उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद नुसरत का ठिकाना होगा, उनकी वफ़ात की जगह यही होगी, इन्हें यहीं दफ़न किया जाएगा। हमारी किताब पिछले अरूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक़्त इनकी अज़मत का ऐलान करूँ तो खुद इनके लिए और मेरे लिए ख़तरात पैदा हो जाएँगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक़्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊँचे रुतबे की दास्तानें सुनाता, लेकिन मैंने ये राज़ तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। मैंने हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियाँ और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मिक़दार में सोना, चाँदी, 100-100 ऊँट, अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को इससे 10 गुना ज़्यादा दिया और बोला, "साल गुज़रने पर मेरे पास इनकी खबर लेकर आना, इनके हालात बताना।" साल गुज़रने से पहले उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर इस बादशाह का ज़िक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अज़ीम सरपरस्त का साथ छूट गया। इस वक़्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख़ की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे ज़्यादा लिखी है। जिस वक़्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को जो उनके मकाम पर उनके दादा कसा के पास दफ़न किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। आप अबू तालिब के निगरान हुए। अबू तालिब के अलावा भाई अब्बास और ज़ुबैर भी ख़्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गया तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। इन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इज़ाफ़ा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक़्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खाना खाते तो थोड़ा भी सबके लिए काफ़ी होता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक़्त होता तो सब दस्तरख़्वान पर बैठते। अबू तालिब उनसे कहते, "अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना।"
پھر جب آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہو کر کھانا کھاتے پھر بھی بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب دودھ پی لیتے، سب کا پیٹ بھر جاتا، دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند رتبے کا احساس ہے، ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے کہ لات و عزا کی بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے وہ منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم سچ اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط رستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر اس نے کہا میں آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے، وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ ان کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب وادی میں قحط پڑا ہے، بھوکے بچے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا، سب طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر کر آنے لگے اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار پھر ذی الحجاز کے میلے میں گئے، سب جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے آپ سے کہا بھتیجا مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔